Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Chapter 2 from the book First Flight. This chapter is an extract taken from the autobiography of Nelson Mandela. The name of his autobiography was Long Walk to Freedom. And in this extract, he speaks about a historic occasion. Historic occasion is when the South African government was installed. First non-racial first democratic government was installed. Now, Nelson Mandela was the first black president of this new nation. And Nelson Mandela and his African National Congress, they had played a great role in its freedom. Mandela spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela spent 30 years in prison, and finally elections were held in there in 1994, and first democratic government was formed. Now these people of South Africa, they were ruled by white people, and these white people, they were so dominative, and they had started apartheid. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid tha, that was a policy where the white people were separated from the black people. And this separation was not very easy one. This was on a far level, where the hotels, where the rails, the buses, everything, the schools, they were different of the whites and blacks. So we will study about this extract. We come to page number 17. Now 10th May dawned. It was the 10th May when the installation of the new government was taking place. And 10th May dawned bright and clear. 10th May ka din bada bright tha, bada clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. और काफ़ी दिन से I means Nelson Mandela, he was besieged. Besieged means he was surrounded closely by the dignitaries, respected people from the world leaders who were coming to pay their respects to before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और ये inauguration सबसे बड़ा inauguration था साउथ अफ्रीका पे पहली बार international leaders का. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. और ये ceremonies जो हैं एक amphitheater में होनी थी. That was in the Union buildings in Pretoria. Pretoria is a city, big city in South Africa. उसके amphitheater में. Amphitheater is a building without a roof with many rows of seats rising in steps. जैसे कि आप फिल्म्स हॉल में देखते हैं, that is सिनेमा हॉल्स, जैसे वहाँ पे स्टेप्स होती हैं, इस तरह की सीट्स होती हैं और बस उसमें रूफ नहीं होती. दैट इज़ कॉल्ड एम्फीथिएटर. एंड फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. बहुत सालों तक ये यूनियन बिल्डिंग जो है वाइट लोगों का सेंटर रहा है, वहाँ से वो रूल करते थे. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. और अब यहाँ पर बहुत सारे कलर्स का एक रेनबो मीन्स ब्यूटिफुल, लाइक कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल. बहुत सारे लोग वहाँ पे गैदर्ड थे डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स में. ऐसा लग रहा था जैसे एक रेनबो बन रहा है. एंड द नेशंस, बहुत सारे कई नेशंस के लोग थे which have come for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. और उस दिन जो है नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ वहाँ जाते हैं. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. और उस दिन Mr. de Klerk was made the second vice president. Deputy means vice president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. उसके बाद Thabo Mbeki was made first vice president. When it was my turn, Mandela कहते हैं जब मेरा टर्न था, I was pledged to obey and uphold the constitution. Now he was made the first president, and he pledged means he promised to obey and uphold, that is maintain the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और उन्होंने प्रॉमिस किया, प्लेज ली कि वो जो अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर देंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में और इस रिपब्लिक के लिए और वहाँ के लोगों के लिए. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वो जो वहाँ पे लोग बैठे थे उनसे उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. वो कहने लगे जो भी आज यहाँ पर बैठे हैं, कन्फर ग्लोरी,
वी गिव ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न फ्रीडम, हम एक ग्लोरी देते हैं बड़ी खुशी के साथ. वी गिव अ होप टू दिस न्यू बॉर्न लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स जो फ्रीडम हमें मिली है. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. वो कहते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, जितना भी हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं, डोमिनेशन हुआ है, टॉर्चर हुए हैं, जो कि बहुत लंबा चला है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. अब हम एक ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पर ह्यूमैनिटी जो है वो प्राउड फील होगी. अब ह्यूमननेस चलेगी. वी हु वर आउटलॉज, कह रहे हैं हम लोग जो कि आउटलॉज थे. आउटलॉज मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका. जब अपार्थीड की पॉलिसी वहाँ पर चल रही थी तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने वर्ल्ड की अपना कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया था. किसी भी तरह का कोई कनेक्शन साउथ अफ्रीका से नहीं रखा हुआ था. वो कह रहे हैं जो हम कल तक आउटलॉज थे, हमारे साथ किसी का रिलेशन नहीं था, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil. और आज हम बड़े प्रिविलेज के साथ ये कह रहे हैं कि नाउ वी आर होस्टिंग इतने सारे नेता जो हैं दुनिया के, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोग हमारे सॉइल पर आए हैं. वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज़. फिर कहते हैं वी थैंक ऑल दीज डिस्टिंग्विश्ड, ऑल दीज फेमस इंटरनेशनल गेस्ट जिन्होंने हमारे साथ हमारी खुशी में मिले हैं. आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. वो कह रहे हैं हम सब यहाँ पर किसके लिए बैठे हैं? वी हैव कम हियर फॉर जस्टिस, विक्ट्री. हम जस्टिस कि कैसे जस्टिस की, इंसाफ की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी की पीस हुई है. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन. मंडेला कहते हैं अब हमने अपनी पॉलिटिकल इमांसिपेशन, इमांसिपेशन मीन्स फ्रीडम, हमें पॉलिटिकली फ्रीडम मिल चुकी है. एंड वी pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और अब हम प्लेज लेते हैं कि हमें अपने लोगों को लिबरेट करना है, फ्री करना है ये बंधनों से. किस चीज़ के बॉन्डेज से, किस चीज़ के बंधन से? पॉवर्टी के, डेप्रीवेशन के. डेप्रीवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल ईयर, जहाँ पर लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता. सफरिंग से, जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन से और कितने भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से आज हम कसम लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम वो सब भी ख़त्म करेंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. तो कहते हैं अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये ब्यूटीफुल लैंड हमारा साउथ अफ्रीका दोबारा से उस ऑपरेशन को, उस डोमिनेशन को देखेगा जो उसने देखा है. The sun shall never set on so glorious a human achievement. और सन कभी भी अब हमारे ऊपर से सेट नहीं होगा, हमारे अचीवमेंट्स में सन हमेशा हमारे साथ चमकता रहेगा. लेट फ्रीडम रेन. फिर वो कहते हैं लेट फ्रीडम रूल करे हमेशा से. गॉड ब्लेस अफ्रीका. पेज नंबर 19, फर्स्ट पैरा. A few months later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. A few moments later, उसके बाद जो है सब लोगों ने आगे ऊपर करके देखा कि एक स्पेक्टेकुलर एरे. स्पेक्टेकुलर एरे मीन्स इम्प्रेसिव डिस्प्ले और कलरफुल एंड अट्रैक्टिव डिस्प्ले था साउथ अफ्रीकन के जेट्स का. उसके बाद ऊपर से जेट्स जाते हैं जैसे हमारे 26 जनवरी में जाते हैं ना, सो दैट वे हेलीकॉप्टर्स का. एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. और उनके जो ट्रूप कैरियर्स, जो एरोप्लेन्स थे, जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स, बड़े परफेक्ट ऑर्डर में वो रोर करते हुए, नॉइस करते हुए परफेक्ट फॉर्मेशन में ऊपर से गुजरते हैं. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स. वो कहते हैं ये सिर्फ एक प्रिसीजन नहीं था हमारा, एग्जैक्टनेस नहीं था सिर्फ हमारा और हमारे मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. पर ये हमारा डेमॉन्स्ट्रेशन था, एक शो था मिलिट्री की लॉयल्टी का कि कैसे मिलिट्री हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ लॉयल है. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. ये इस बात को शो कर रहे हैं कि कैसे मिलिट्री जो है, जो नई गवर्नमेंट बनी है, वो उसके साथ है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कह रहे कुछ ही मोमेंट पहले, कुछ ही देर पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्सेस में, मिलिट्री में, आर्मी में, नेवी में, और जो उनकी पुलिस थी, जिनके की चेस्ट्स पर जो हैं वो रिबन्स बंधे हुए हैं,
their chests are adorned. Bedecked means adorned, decorated with ribbons and medals जो from days gone by, पुराने रिजीम का, पुरानी गवर्नमेंट ने जो उनको मेडल्स दिए थे, आज वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं और प्लेज कर रहे हैं. प्लेज मीन्स वो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी लॉयल्टी के, वो अब हमारे साथ हैं. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कहते हैं मैं आई एम नॉट अनमाइंडफुल. अनमाइंडफुल कहते हैं कि आई एम कॉन्शियस ऑफ, कि मुझे ये भी पता है, अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि कुछ ही सालों पहले ये लोग मुझको सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट करते थे, बट आज ये मुझको सैल्यूट कर रहे हैं. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट स्मोक लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. और फाइनली एक शेवरन, शेवरन मीन्स अ पैटर्न, एक पैटर्न बना धुएं का वी शेप में. और किस किस कलर का वो धुआं था? दैट वाज ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू और गोल्ड. और ये कलर्स हैं किसमें? न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में. इट वाज द सिंबल ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग. एक एरोप्लेन जो है ये इस कलर के धुएं छोड़ करके आता है ऊपर से. द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर ऑफ द The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. और कह रहे हैं आज का दिन जो है वो बड़ा सिंबॉलिक है. आज के दिन टू नेशनल एंथम्स चलाई जाएंगी. एंड द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेल इल ई अफ्रीका. एक तो जो है नेशनल एंथम वाइट लोगों का, दैट वाज, उसका नाम है कोसी सिकेलेल ई अफ्रीका. एंड ब्लैक सिंगिंग और ब्लैक्स का है डी डाई स्टेप, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि पुरानी हमारी एंथम है, नेशनल एंथम है रिपब्लिक की. ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइट. अब उस दिन जो है दोनों बज रही थी. दैट डे नाइदर ग्रुप, दोनों ग्रुप ना वाइट और ब्लैक, अब दोनों वाइट ब्लैक जो है कॉमन हो गए, मिल गए हैं. उन्हें एक दूसरे की लिरिक्स नहीं पता थी एंथम की, क्योंकि वो उसको डिस्पाइज करते थे, हेट करते थे एक दूसरे की एंथम को. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. लेकिन मंडेला कहते हैं बहुत जल्दी ये एक दूसरे की नेशनल एंथम को याद कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं इस दिन में, इनाग्रेशन वाले दिन में, आई वॉज ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड मीन्स इम्प्रेस्ड with the sense of history. एकदम से मेरे दिमाग में पूरी हिस्ट्री याद आ गई अफ्रीका की. In the first decade of the 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. और कहते हैं in the first decade of the 20th century, 20th century का first decades में जैसे फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो बोर वॉर, एक वॉर होता है, एंग्लो मीन्स बिटवीन द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द वाइट पीपल, दैट वाज बिफोर द बर्थ ऑफ मंडेला ऑफ कोर्स. द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये जो वाइट पीपल थे साउथ अफ्रीका के, दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस. उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस थे उन्होंने उसको ख़त्म किया. दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़ा था अलग अलग वाइट लोगों का, जो उनको डिफरेंसेस को उन्होंने ख़त्म किया. एंड दे इरेक्टेड मीन्स दे मेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. फिर वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सा सिस्टम रेशियल डोमिनेशन का खड़ा किया अगेंस्ट द डार्क पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो डार्क लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट किया. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स दे डिवाइडेड द पीपल इनटू वाइट्स एंड ब्लैक्स. वाइट लोगों ने अपना पैचअप कर इन ब्लैक लोगों के ऊपर रोल किया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने अपार्थीड का जो खड़ा किया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, ये सबसे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रूअल रहा, मोस्ट इनह्यूमेन. इनह्यूमेन मीन्स लैकिंग ह्यूमन क्वालिटीज़. इसमें बिल्कुल उन्होंने इंच भर भी ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं दिखाई. सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, पूरी दुनिया में ये सबसे क्रूअल और इनह्यूमेन था. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, कहते हैं अब ये जो लास्ट डिकेड आ गया 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मैं भी अब 8th डिकेड का हो गया हूँ, मीन्स 80 ईयर्स का हो गया हूँ. दैट सिस्टम हैज़ बीन ओवर टर्न. अब ये सिस्टम जो है ओवर टर्न हो गया, ख़त्म हो गया.
and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all the peoples. अभी इसकी जगह पर एक ऐसा सिस्टम आ गया, एक ऐसी गवर्नमेंट हो गई है जो कि सबके राइट्स को, सबके फ्रीडम को रिकग्नाइज करेगी रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. अब स्किन की कलर का कोई महत्व नहीं रह गया. रिगार्डलेस ऑफ द स्किन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्किन, चाहे वो वाइट है, ब्लैक है, सबको समानता मिलेगी. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. मंडेला कहते हैं, बट ये जो दिन आया है, that had come due to unimaginable sacrifices of thousands of my people. हजारों लोगों ने अपना sacrifice दिया. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. ऐसे ऐसे सफरिंग, ऐसा करेज लोगों ने दिखाया जो कि ना तो काउंट किया जा सकता है और ना ही उसका बदला लिया जा सकता है. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और कह रहे हैं I felt that day, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं I was simply the sum, मैं उन सब का सम हूँ, मैं उन सब को ऐड करके मैं रिज़ल्ट हूँ. जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स हमसे पहले गए हैं, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया है, कि मैं उन सबका एक सम हूँ जो मुझसे पहले गए. That long and noble line ended and now began again with me. कह रहे हैं वो जो लंबी लाइन थी, नोबल लाइन थी पैट्रियट्स की, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, दैट लाइन हैड एंडेड, और अब एक नई लाइन शुरू हुई है मुझसे, पैट्रियट्स की. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम. कहता है मुझे इस बात का पेन है, दुख है, आई एम सॉरोफुल कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट. और मुझे बड़ा दुख है कि वो ये देख नहीं पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदान के बदले क्या मिला है. रॉट मीन्स अचीव्ड. आज हम लोगों को क्या मिला है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. कह रहे हैं ये जो पॉलिसी थी अपार्थीड की, इसने गहरा और लास्टिंग, ना ख़त्म होने वाला एक वूंड मीन्स इंजरी, मेरी कंट्री में डाल दी है और मेरे लोगों में भर दी है. ऑल ऑफ us will spend many years, if not generations, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. कह रहे हैं हम सब लोगों को बहुत साल भी नहीं, बहुत जनरेशन्स भी नहीं, लेकिन बहुत साल लग जाएंगे इस दुख से उभरने में. फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम दिस प्रोफाउंड हर्ट. प्रोफाउंड मीन्स डीप. ये जो गहरा हमें दुख मिला है, इसमें हमें कई साल लग जाएंगे बाहर आने में. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's. पर कह रहे हैं वो जो डिकेड्स, वो जो साल दर साल जो ऑपरेशन के, ऑपरेशन मीन्स डोमिनेशन है ना. सी वन मोर है ना, ऑपरेशन यू राइट डाउन, ट्रीट समबडी इन क्रूरल्टी एंड अनफेयरली. ट्रीट समबडी इन क्रूरल्टी एंड अनफेयरली, डोमिनेशन जिसे कहते हैं. वो कह रहे हैं बट वो जो साल दर साल ऑपरेशन के गुजरे हैं, ब्रुटैलिटी, क्रूरल्टी के गुजरे हैं, had another unintended means without any intention, without any wish, उसका एक और इफ़ेक्ट हुआ है. ये जितना भी हमारे ऊपर दमन हुआ है, जितनी भी हमारे साथ क्रूरल्टी हुई है, उसका एक और हमें साइड इफ़ेक्ट मिला है. एंड दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर. बट उसकी वजह से हमें इतने महान लोग मिले हैं, लाइक ऑलिवर टेम्पोज, वॉल्टर सिसुलूज. सी द पिक्चर्स आर गिवन देयर. ऑलिवर Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, and then Yusuf Dadu, Bram Fisher, and also Robert Sobukwe. So कहते हैं इसकी वजह से हमें इतने महान लोग मिले हैं. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ये इतने courageous